Hello children, welcome back to Accounts is Easy. Okay, in the last video we stopped at case 6. अभी उसी cases को continue करना है where we are making notes to account for share capital. थोड़ा सा और different cases बचा है forfeiture and all, so that's why I did not discuss in the last class. I hope last video देखा है और case 6 तक समझ में आया है. In case you have any doubt, please do write in the comment section, and if you haven't subscribed, kindly do subscribe, okay? You don't have to miss any of the videos that I post. Now, here I'm taking case 7. जहाँ तक last case किए थे उसी का advance एक और step आगे जाते हैं. Case 7 says the company made all calls except the final call of 20%. जैसा ये था last case में, last sum में. So we are doing that itself. 20 rupees कॉल नहीं हुआ तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है 80 आउट ऑफ 100. एक शेयर 100 का है जिसमें से 20 कॉल अप हो चुका है, 80 बाकी है. All sums were received except first call of rupees 10 per share on 1000 shares. तो ऐसे 1000 shares हैं जिसमें 10 rupees करके कंपनी ने तो कॉल किया फर्स्ट कॉल, लेकिन शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया. तो इस जो अमाउंट नहीं मिलता है उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स. ओके, तो कितना पैसा नहीं मिला, ये 10 into 1000. So 10,000 is calls in arrears. Fine. And now the company forfeited all shares on which these calls there were calls in arrears. अब ये forfeiture वाला, ये हमने लास्ट स्टेप में नहीं किया. यहाँ तक तो किया calls in arrears. अब कंपनी क्या कर सकती है समझ लो. forfeiture क्या होता है वो जल्दी से समझ लो. द कंपनी whenever it asks the shareholders to pay something and the shareholders don't pay, तो क्या करेगा कंपनी? It will give a due notice, and within that time if the shareholder does not pay his dues, then the company can cancel the shares of the shareholder. कैंसिल मतलब शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं रहे अब वो शेयर्स. ये समझना है कि forfeiture का मतलब समझो. Share capital will be debited with the called up value. Called up value कितना 80 per share. और कितने shares हम cancel कर रहे हैं 1000 shares. So 80,000 I am debiting to share capital. but journal entry बता दे रहे so that उसका effect और अच्छे से समझ में आएगा. So this 80,000 is gone out of subscribed capital. ठीक है, तो ये 1000 शेयर मैंने कैंसिल कर दिए हैं. मेरे पास टोटल कितने शेयर्स थे? I had issued 15,000 shares. Remember, the first part is not changed. So 15,000 में से 1,000 shares हो गए कैंसिल. तो मेरे पास अभी कितने shares बचे? 14,000. Now, शेयर कैपिटल को तो डेबिट कर दिया. अब ये जो कॉल्स इन अरियर्स है अब तो वो नहीं मिलेगा. So I will credit calls in arrears. How much is calls in arrears? 10,000. Meaning out of 80,000 that I had asked the shareholders to pay, these 1,000 shareholders, 10,000 they did not pay. The remaining 70, वो 70 तो उन्होंने पे किया ना. So this 70,000 is credited to share forfeiture. तो एक हम अकाउंट बनाते हैं जो है शेयर forfeiture. उसमें क्या डालेंगे? जितना भी शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पे कर दिया है. तो ये क्रेडिट क्यों? क्या हम रिटर्न करेंगे शेयर होल्डर को? नहीं. द कंपनी विल नॉट रिटर्न. इट्स नॉट लायबल टू रिटर्न द अमाउंट दैट इज ऑलरेडी पेड, द शेयर होल्डर हैज पेड. तो इसको फोरफीट कर लिया जाता है, मतलब ये पैसा आप कंपनी का हो गया. इट्स काइंड ऑफ गेन फॉर द कंपनी. ओके, रिटेन कर लिया है, ठीक है, एंड इज नॉट सपोज टू रिटर्न दैट मनी अमाउंट टू द शेयर होल्डर. तो ये शेयर्स भी अब कैंसिल कर दिया हमने, वो शेयर होल्डर भी नहीं है और उसके पैसे भी गए. Now, what will the company record and show in subscribed capital? So, authorized capital is not changing. It's the same as 20,000 shares of 100 each, 20 lakh. और issued capital भी वही है, 15,000. Subscribed में आ जाओ. Subscribed में we were discussing there are two categories, subscribed and fully paid, subscribed but not fully paid. तो यहाँ पे भी अभी वही है. देखो, अभी तक सिर्फ कंपनी ने 80 rupees कॉल किया है ना, ये 20 तो अनकॉल्ड है. So there are no shares under subscribed and fully paid. So we have the category subscribed but not fully paid. All the shares. अब all मतलब कितना? 15,000 थे, 1,000 मैंने कैंसिल कर दिया है, तो बचे कितने? टोटल 14,000 shares.
14,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये 14 lakhs हो गया। बट मेरे पास 14 lakhs तो है कि नहीं है ये बताओ। अभी मेरे पास कॉल्स इन अरियर्स था, वो मैंने क्लोज कर दिया, तो अब कोई लेस कॉल्स इन अरियर्स तो कुछ नहीं होगा। ये 14,000 शेयर्स जो है 100 ईच के है, मैंने कॉल अप कितना किया है 80, तो ₹80 कॉल अप। तो मेरे पास 14,000 है क्या, 14 lakhs है क्या, नहीं है। इट इज 14,000 इंटू 80, ये मेरे पास है। और जो बाकी जो 1,000 शेयर है जो मैंने कैंसिल कर दिया, उसका कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं है, वो क्लोज हो गया। तो जब हम फोरफीट करेंगे तो कोई कॉल्स इन अरियर्स नहीं बचेगा उन शेयर्स पे। ये समझ में आ गया ना। 14 इंटू 8, 11,80,000 is what we have with us. 11,20,000, ठीक है। तो ये मेरे पास अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। बट अब वो जो 1,000 शेयर मैंने फॉरफिट किए, उनका जो अमाउंट मेरे पास है ये 70,000, ये कहाँ दिखाऊं? दिस इज ऑल्सो, अभी शेयर्स पे तो नहीं है क्योंकि शेयर तो कैंसिल हो गए, लेकिन शेयर होल्डर्स का पैसा तो है ही है, शेयर होल्डर्स फंड्स में ही दिखेगा। और ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ही यहाँ पर अलग से हम दिखाएंगे शेयर फॉरफीचर 70,000, ये पैसा भी है मेरे पास। ये उन 1,000 शेयर्स का है जो मैंने फॉरफीट किया और ये पैसा हमने वापस नहीं किया। So this also will be added to subscribed capital. तो कितना हो गया 11,90,000. Understood? This amount will be going in the balance sheet. So please make a note of this. अभी अगर क्लियरली समझ में आ गया है तो क्या करना है, जब भी शेयर फॉरफीचर हो रहा है तो कॉल्स इन अरियर्स खत्म हो जा रहा है। तुमको यहाँ पर क्या दिखाना, जितना पैसा मिल गया, बस ये कैलकुलेट करो। जो भी सम में अमाउंट्स है तुमको देखना है इन शेयर्स पे, जितने भी शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं उस पे मैंने पर शेयर कितना फॉरफीट कर लिया, मतलब अब रिसीव कर लिया लेकिन वापस नहीं दे दिया, वो हमको शेयर फॉरफीचर में दिखाना है। और बाकी जो शेयर्स है मेरे पास वो हम अलग से दिखा ही रहे हैं। 14,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ₹80 कॉल्ड अप, तो मेरे पास ऑलरेडी इन शेयर्स से है 11,20,000। डन। तो दिस इज केस 7। इसके आगे भी जाएंगे एक स्टेप, केस 8 पे चलते हैं। केस 8 says all of this the same, यहाँ फॉरफीचर तक सब सेम। फॉरफीचर के बाद कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स तो कैंसिल कर दिए, द कंपनी कैन री इशू दी शेयर्स। इशू तो फर्स्ट टाइम किया था, वो शेयर होल्डर को कैंसिल कर दिया, शेयर होल्डर नहीं है वो, तो ये मेरे पास 1,000 शेयर्स जो है अभी मैं उनको री इशू कर सकती हूँ, तो एनी ऑफ द शेयर होल्डर, ओके, एनी पर्सन। So now the reissued all shares forfeited, यहाँ पर ये जो all है इस पे ध्यान दो, जरूरी नहीं है कंपनी सारे शेयर्स रीइशू कर दे जितने फॉरफीट किए हैं। इस केस में मैंने लिया है reissued all shares that were forfeited. So how many shares are these? 1,000 shares at 70 per share. At जब दिया रहता है, at मतलब कितने पे बेचा, That means I'm receiving 70 per share. 70,000 मिल रहा है मुझे। पैसे कितने आ रहे हैं मेरे पास बैंक में? 70,000. 1,000 shares and into 70. Okay? This I have received. But it is as 80 called up. And paid up भी हो सकता है यहाँ पर. Paid up, called up. जो सभी दिया है। इसका मतलब क्या है? I am considering, although you're paying me 70, I have considered you've paid me 80. ऑलराइट, तो 80 पे कर दिया अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन 70 पे किया, मतलब क्या, मैंने इसको डिस्काउंट पे इशू किया, मेरे को 10 रुपए का लॉस हो रहा है यहाँ। तो ये जो 10 रुपए का लॉस हो रहा है और यहाँ पर मेरे को करना पड़ रहा है कैपिटल को क्रेडिट 80 रुपीज से 80,000, क्योंकि मैंने कंसिडर क्या किया कि ये शेयर्स 80 पेड अप है, तो मुझे शेयर कैपिटल में कितना दिखाना होगा 80। तो ये बाकी का 10,000 कहाँ गया, लॉस जो आ रहा है मेरे पास, जो डिस्काउंट दिया मैंने, वो मैं लूंगी शेयर फॉरफीचर से, जो अभी हमने क्रेडिट किया था फॉरफीचर के टाइम। तो ये हो गया शेयर फॉरफीचर। फॉरफीचर अकाउंट में हम 10,000 डेबिट कर देंगे, ठीक है।
जो भी लॉस होता है। अगर मैंने इसको पूरे 80 पे ही बेचा होता तो 80,000 बैंक में और शेयर कैपिटल में 80, कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, तो ये शेयर फोरफीचर डेबिट भी नहीं होता। शेयर फोरफीचर जैसा था वैसा रहता। कितना? 70,000 था ना शेयर फोरफीचर में, तो वो पूरा 70 के 70 इंटैक्ट रहता। लेकिन अभी मैंने डिस्काउंट दिया है तो वो शेयर फोरफीचर अमाउंट कम हो जाएगा। कितने से कम होगा? 10,000। शेयर कैपिटल कितना बढ़ जाएगा? वापस 80,000। और मेरे पास शेयर्स कितने हो गए अब वापस से? पहले देखो 15 थे, मैंने 1000 कैंसिल किया, अब मैंने 1000 री इशू कर दिया, मतलब ये वापस आ गया ना मेरे पास सब्सक्राइब कैपिटल में। तो अब ये वापस से मेरे पास 15,000 शेयर्स आ गए सब्सक्राइब कैपिटल में। ओके, मैं जब री इशू किया है तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स। So again we have subscribed but not fully paid because all are 80 per share call. We have now 15,000 shares of rupees 100 each, rupees 80 per share call. So again 15,000 into 80, we have 12 lakh rupees. ये देखो 80,000 वापस आ गया। पहले केस में क्या था? 11,20,000. अब another 80 has come back, so it has become 12 lakhs again. तो 12 lakhs मेरे पास आ गए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड में। अब ये शेयर फॉरफीचर का क्या करें? देखो, जब भी शेयर री इशू होते हैं उस पे जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो एडजस्ट होने के बाद जो बच जाता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं एक अकाउंट में जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। तो फिलहाल मेरे पास शेयर फॉरफीचर में कितना बचा है? आई हैड क्रेडिटेड इट 70,000। सी लास्ट केस से ही है कनेक्शन। 70,000 थे मेरे पास शेयर फॉरफीचर में, मैंने 10,000 डिस्काउंट दे दिया। अब वो जो 60,000 है वो मुझे किसी को नहीं देना। दैट्स अ प्योर प्रॉफिट फॉर द कंपनी, कैपिटल प्रॉफिट। दैट इज वाई उसको क्या किया जाता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट करेंगे 60,000 जो बच गया है आफ्टर री इशू टू कैपिटल रिजर्व। 60,000 कैपिटल रिजर्व आफ्टर फॉरफीचर जो मेरे पास नेट गेन हुआ है, ठीक है, वो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं शेयर कैपिटल रिजर्व में। तो अब मेरे पास शेयर फॉरफीचर में बैलेंस बचा क्या? नहीं बचा ना, क्लोज हो गया। देखो 70 क्रेडिट किया था, 10 डेबिट किया और 60 को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिर 60 डेबिट किया तो 70 खत्म। यहाँ पर और शेयर फॉरफीचर कुछ नहीं आएगा। जब री इशू हो जाते हैं ना सारे शेयर्स तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये जो 2-4 बातें हैं दिमाग में अच्छे से डाल दो तो क्या है, तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ इस केस में मुझे ये करना है। ओके, और अब देखते हैं कि अगर हमने सारे शेयर्स री इशू नहीं किए तो जितने भी फॉरफिट किए थे, अगर सारे शेयर्स री इशू नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? ओके, लेट्स सी। तो हम केस 9 लेते हैं। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, बाकी सब कुछ सेम है। लास्ट में अगर मैंने लिखा री इशूड 600 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स डिड आई फॉरफिट? 1000 शेयर्स। ऑल शेयर्स वर फॉरफिटेड, लेकिन 600 ही री इशू किया। मतलब कितने री इशू नहीं किए? 400. Okay, now and forfeited as at 70 per share as 80 paid up. इसको मैंने चेंज नहीं किया, बस ये समझो कि यहाँ 1000 नहीं है, ऑल नहीं है, 600 है। तब क्या किया जाएगा? ओके, तो मेरे पास 15,000 शेयर्स थे, 1000 मैंने फॉरफिट कर दिया, अब मैं री इशू करी 600, तो एड बैक कितना होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में? ओनली 600 शेयर्स। रिमेनिंग 400 शेयर्स आर स्टिल नॉट री इशूड। तो उससे रिलेटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिखेगा यहाँ पर। कैसे करते हैं देखो, मेरे पास कौन सा शेयर फॉरफीचर में कितना है? 70,000 है ना, क्रेडिटेड या फॉरफिटेड दिस मेनी शेयर्स, दिस मच अमाउंट। इसमें से लेट्स डिवाइड दैट 600 पे कितना फॉरफिट किया और 400 पे कितना फॉरफिट किया। पर शेयर मैंने कितना फॉरफिट किया? कम ऑन टेल मी। 70 पर शेयर, राइट? 70 पर शेयर मैंने फॉरफिट किया था, तो 70 इंटू 600 कितना फॉरफिट किया मैंने 600 शेयर्स पे? 600 इंटू 70 42,000, और 400 शेयर्स पे मैंने किया फॉरफिट 28,000. Why am I segregating it here?
देखो जिसने शेयर इशू ऑफ शेयर सब किया हुआ है उसको ये समझ में आ जाएगा, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ मैं बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ तुमको, अगर तुमने शेयर नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आई एम सपोज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड ऑन री इशू ऑफ द शेयर दैट आई एम री इशूइंग। अगर मैंने री इशू नहीं किया है तो इसको हम छू नहीं सकते हैं, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट में दिखेगा जब तक कि हम ये 400 शेयर्स री इशू ना कर दें। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो अभी मेरे पास जो मैं यहाँ पर री इशू कर रही हूँ, जो भी डिस्काउंट दूंगी वो इसमें से देना है मुझे, ये 42,000 में से देना है, 70,000 में से नहीं। मेरे पास पूरा 70,000 अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं सारे शेयर्स री इशू नहीं कर रही। ओके, आई एम नॉट री इशूइंग 1000 शेयर्स। सो नाउ लेट्स सी दिस। ये 42,000 आई एम गोइंग टू सी, आई एम इशूइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10। How many shares am I reissuing? 100. तो per share discount है 10 rupees, 80 minus 70, तो 6,000 मैंने डिस्काउंट में लगा दिया। बाकी जो बचेगा वो है तुम्हारा 36,000, वो मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूँ। मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ये पूरा अमाउंट चला जाएगा, कुछ डिस्काउंट देने में चला गया और जो बच गया मेरा नेट गेन वो मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। डन। Now, what will be shown in subscribed capital here in the notes to accounts is this, जो बच गया मेरे पास, ये शेयर फॉरफीचर का बैलेंस बचा है 28,000, वो मुझे यहाँ दिखेगा। तो अब देखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड ही रहेगा बिकॉज सारे शेयर्स 80 पर शेयर होना। कितने शेयर्स है मेरे पास अभी? 15,000 थे माइनस 1,000 प्लस 600, ठीक है। 15,000 से 1,000 फॉरफिट कर दिया, माइनस हो गए, एड बैक कितना किया? 600। तो मेरे पास 14,600 शेयर्स बचे हैं। 400 कैंसिल ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, ₹80 पर शेयर कॉल्ड। इस पे कोई कॉल्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये अमाउंट यहां आएगा और शेयर फॉरफीचर कितना आएगा? 28,000। ओके, तो ये कैलकुलेट करेंगे 11,68,000। ओके, 436, यस। तो 11,68,000 मेरा सब्सक्राइब में आ गया और शेयर फॉरफीचर भी आ गया यहाँ पर। तो कितना हो गया यहाँ पे? 11,96,000 एंड दिस विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। और अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व भी कहीं दिखाना है क्या? इसमें नहीं दिखाना है। कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स में चला जाएगा। अगर हम रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स बना रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप दिखाइए capital reserve. In this case, capital reserve will be showing 36,000. ठीक है, जितना मेरा प्योर प्रॉफिट है डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो जरूर कमेंट में लिखो कैसा लग रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है वो भी पूछो, फील फ्री, एंड टू शेयर द लिंक टू पीपल who still need help in the last moment. And you also benefit out of it. Keep my channel subscribed, children, for future reference too. Thank you so much. We'll continue with more in the next video. Bye bye. This is Kavita Rabindranath. Accounts is easy.